हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? एंजॉयिंग रेनी सीजन? सो दिस इज द सीजन फॉर विच आवर फार्मर्स आर वेटिंग. Yes, I am talking about this is the season for growing crops. Which crop? Yesterday we were discussing, last class we were discussing about a crop that is required more amount of rainfall, that is the kharif crop. So this is the time to just go for showing the kharif crop. So nevertheless, we are coming back to the point. So today we are going to discuss about the major crops of India. There are variety of crops that are grown in India, and out of some crops we are going to just pick some major crops that we need to know. What are the conditions that is required for the growth or for the cultivation of these kind of crops. So first major crop is rice. Rice. In rice production, India is second largest producer in the world. Just you need to know who is the first. Okay, it is a kharif crop, and what is the temperature required? About 24 degrees C. It may be temperature may be vary. Some may be high. Some places temperature may be high. High humidity with annual rainfall about 100 centimeter. Annual rainfall must have 100 centimeter. One more thing, the areas where less amount of rainfall is there, those areas can be used for the sowing or cultivating rice with the help of the irrigation system. If there is a good irrigation system, in those areas where having less amount of rainfall, we can grow rice also. For the cultivation of rice, what kind of soil is required? Actually, a variety of soil can be used for the purpose of growing rice cultivation. It can be grown in alluvial soil, even in red soil, in some parts of the area where black soil is there. This crop can be grown. So there is a variety of soil that can be used for the purpose of cultivating rice. Next one, major producers. There are number of states which are producing rice, but over here we are going to discuss about the major producers. So these are the major producers. WB means West Bengal, UP, Andhra Pradesh, Punjab, Tamil Nadu, Odisha. So apart from these states, there are number of other states too that are producing rice, but we are focusing upon the major producers. There are number of states producing rice, but they are minor producers. Next one, the next major crop is wheat. Just opposite from rice, wheat is a rabi crop. Rabi crop means winter crop. It is winter crop. Last class we have discussed about this. It is a winter crop. Temperature at the time of sowing, temperature must be between 10 degree centigrade to 15 degree centigrade. And at the time of ripening, जब ये फसल पक रही होती है तो इसको टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री से 28 डिग्री सी के आसपास. एंड फॉर रेनफॉल निश्चित रूप से राइस से कम होगी तो 50 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर. फिर यहाँ देखिए कंट्रोल इरिगेशन, यानी कि मनमाने तरीके से पानी आप नहीं डाल सकते क्योंकि इससे पानी की मात्रा कम चाहिए, इसलिए कंट्रोल इरिगेशन इज बेनिफिशियल. ग्रोइंग वैरायटी ऑफ सॉइल सिमिलरली लाइक राइस, क्लेई सॉइल, लोनी सॉइल, ब्लैक सॉइल, alluvial soil, these all soil are used for the purpose of growing wheat. Next one, the major producer: Punjab, Haryana, Rajasthan, UP, Madhya Pradesh, Bihar. These are the major producers. Punjab itself growing wheat up to that much of quantity that alone Punjab would fulfill the needs of whole India alone. So this kind of development is due to the Green Revolution. Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, these are the parts that got huge mileage after the Green Revolution in the field of agriculture. So next we are going to discuss about another major crop, that is millets. Then after we will discuss about sugarcane, cotton, jute and all. A number of crops are there. Next, millets. Millets is a group of 3 coarse grain. Coarse मतलब मोटा अनाज कहते हैं. ये कौन कौन है? ज्वार, बाजरा एंड रागी. As I have said you earlier,
that millets are very much nutritious food and is used as a fodder also and as a food also. मतलब जानवरों के लिए चारे के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं और इंसानों के खाने के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं। ये रबी और खरीफ दोनों सीजन में इसकी खेती की जा सकती है। इसके लिए बहुत अधिक रेनफॉल भी नहीं चाहिए और ये लेस फर्टाइल सॉइल में भी इसकी ग्रोथ हो सकती है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेस फर्टाइल सॉइल में भी इसे उगाया जा सकता है, इसीलिए इसे ड्राई क्रॉप्स भी कहते हैं बिकॉज इट डू नॉट नीड मच रेनफॉल एंड कैन बी ग्रोन इन लेस फर्टाइल सॉइल। बेस्ट सुटेड सॉइल इज रेड सॉइल, सैंडी सॉइल, लोमी एंड ब्लैक सॉइल आर द बेस्ट सुटेड सॉइल। रागी के लिए प्रोड्यूसर, मेजर प्रोड्यूसर कौन है? कर्नाटका, तमिलनाडु। ज्वार के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश। बाजरे के लिए राजस्थान, यूपी। These are the major producing areas. Apart from these areas, there are number of other states also producing the same, but these are the major. And second one, maize. Maize is also very important crop. It is also used for the industrial purpose too. So it is more or less it is a kharif crop and used as a food as well as fodder also, just like the millets. Next, temperature is about 21 डिग्री। देखिए यहाँ पे खरीफ क्रॉप है तो ऑलमोस्ट खरीफ के लिए जितनी भी चीजें चाहिए वो यहाँ भी चाहिए। वैसे कई प्रदेशों में जायद सीजन में भी मेज की खेती की जाती है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होती। जायद सीजन में भी मेज की खेती की जाती है विद द हेल्प ऑफ द गुड इरिगेशन फैसिलिटीज। नेक्स्ट वन, सॉइल बेस्ट सुटेड ओल्ड एलुवियम। देखिए बेस्ट फर्टाइल सॉइल में भी ये भी हो सकती है ओल्ड एलुवियम, यानी कि खादर और बांगर आपने पढ़ा था, खादर न्यू एलुवियम है, बांगर क्या है? ओल्ड एलुवियम है। ये थोड़ी लेस फर्टाइल होती है लेकिन यहाँ ये मेज को सूट करती है। नेक्स्ट, रेनफॉल अबाउट 100 डिग्री सेंटीमीटर एनुअली, यानी रबी क्रॉप खरीफ क्रॉप वाली सारी फैसिलिटी यहाँ चाहिए। एरियाज देखिए मेजर प्रोड्यूसर्स तो कर्नाटका है, कोर्स बेल्ट वाले इलाके में ये होते हैं, लेकिन लार्जली जो नॉर्दर्न प्लेन्स वाले इलाके में मेज की खेती होती है। जैसे कर्नाटका तो चले गए आप साउथ में, लेकिन यहाँ देखिए यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, एमपी, दीज आर द मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ मेज। तो ये आपकी मेज खत्म हुई। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे पल्सेस के विषय में, फिर हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे क्रॉप्स जो कि इंडस्ट्रियली बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कमर्शियल क्रॉप भी कहते हैं, जिसको हम लोग प्लांटेशन क्रॉप भी कहते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आपके लिए शुगर केन पढ़ेंगे, टी पढ़ेंगे, कॉफी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आपके पास पल्सेस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट पल्सेस, दाल। देखिए दाल में बहुत सारे फसल आती है, पीज है, बीन्स है, लेंटिल्स है, अरहर है, उड़द है, ग्राम है, मूंग है। सिंपल, ये रबी और खरीफ दोनों सीजन में इसकी पैदावार होती है। टेंपरेचर वाइड वैरायटी रेंज करेगी 20 डिग्री टू 25 डिग्री सी, रेनफॉल 50 टू 75 सेंटीमीटर। इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज रिक्वायर्ड। सॉइल टाइप वैरायटी ऑफ सॉइल हो सकती है, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, सारी सॉइल को ये शूट करती है। नेक्स्ट, मेजर एरियाज एमपी, यूपी, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। These are the major areas where pulses are grown. Next one is sugarcane, very important. India ranks second in the world in terms of sugar producing country. Next one is, it is a major commercial crop of India. Commercial crop means it is a kind of cash crop and it is also regarded as a plantation crop. So remember, whenever we are talking about commercial crop, definitely it will be a labor intensive, a capital intensive crop. मतलब इसमें लेबर फोर्स अधिक चाहिए और कैपिटल भी अधिक चाहिए। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों एरियाज में पाई जाती है, इसलिए इसको सब ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप भी कहते हैं। टेम्परेचर और क्लाइमेटिक कंडीशंस, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए। टेम्परेचर 25 डिग्री टू 35 डिग्री से। रेनफॉल 100 टू 150 सेंटीमीटर एनुअली। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि यदि जिस इलाके में रेनफॉल कम होगी तो विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन सिस्टम उस एरिया में भी शुगर केन की अच्छी फसल ली जाती रही है। नेक्स्ट, वैरायटी ऑफ सॉइल को ये भी शूट करती है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि एक पर्टिकुलर सॉइल, ये ब्लैक सॉइल में भी, एलुवियल सॉइल में भी, कई इलाकों में तो रेड सॉइल में भी पैदा की जाती है और लेटराइट सॉइल में भी पैदा की जाती है। तो मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज को अगर आप देखो, उससे आपको अनुमान हो जाएगा किस प्रकार की सॉइल को ये सूट करती है।
Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Gujarat. These are the major producing areas of India. Even there are number of other states also that are producing sugarcane, but they are not major, they are regarded minor. Major and minor terms are relative. In comparison to the major, we are keeping some states as a minor producing areas. So overall, as far as sugarcane is producing area is concerned, apart from these states, there are number of other states too where sugarcane are being grown. Next time we are going to discuss, that is, we are going to listen or discuss about the tea and then after coffee. That is also two important commercial crop. Tea. चलिए बच्चों, अब हम लोग चाय कॉफी की बात करते हैं. चाय, गरम चाय, गरम चाय, गरम चाय. Okay, tea. Do you know tea is one of the important beverage crop in India, has been introduced by Britishers in India. When India became the colony of Britain, they introduced tea in India, and tea originally just brought from China. ये वहाँ की मुख्य फसल थी और वहाँ से इसको इंडिया में लाया गया. चाय बेच करके इंडिया में अंग्रेजों ने बहुत पैसा कमाया. कहा यह जाता है कि इन इट्स इनिशियल स्टेज when tea was introduced in India, it was provided at free of cost to Indians. Actually, in India, traditionally we just follow our own culture, offering lassi, छाछ, नींबू पानी. That is our tradition. But as India became the colony of England, we gradually learned a number of things from the British, and offering tea is also one of the things that we have adopted from Britishers. It is a part of the Western culture. But nowadays it is very much common, and offering tea, offering cold drinks, these all are become very much familiar in our society. But both are not the part of our traditional culture. So वापस आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं. चलिए, तो क्लाइमेट कैसे है, और ये प्लांटेशन क्रॉप है, कमर्शियल क्रॉप है, कैश क्रॉप है. क्लाइमेट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन चाहिए. सॉइल वेल ड्रेन, लाइट लोमी सॉइल, वेल ड्रेन, यहाँ पानी की कहीं भी स्टैग्नेंसी नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट है स्लोप्स आर बेस्ट सुटेड, यानी जो हिली स्लोप्स हैं जहाँ पानी रिटेन नहीं करती हो, वो इलाके बहुत बेहतरीन माने जाते हैं इनके. 3 टाइप्स ऑफ टी होते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. जान लीजिए 3 प्रकार की चाय पाई जाती है. एक होती है ब्लैक, एक होती है ग्रीन, और एक होती है ओरोमो. और आमतौर पे आप लोगों ने देखा होगा ग्रीन टी को हम लोग कहते हैं कि ये क्या एंटीऑक्सीडेंट होती है. इसमें ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, मेरे जैसे मोटे ताजे आदमी को दुबला पतला रखने के लिए भी ग्रीन टी ऑफर की जाती है. थोड़ी महंगी होती है, लेकिन इस प्रकार से ये 3 वैरायटी ऑफ टी होती है. इंपॉर्टेंट एरिया आसाम, कई बार आपने देखा होगा सड़कों पे, दुकानों पे आसाम की चाय मिलती है. क्योंकि आसाम इज वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया एज फार एज टी इज कंसर्न, इसलिए आसाम की चाय. दार्जिलिंग इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, हिल स्टेशन, बट इट इज आल्सो फेमस फॉर इट्स टी. दार्जिलिंग कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है. इसके अलावा त्रिपुरा में और नीलगिरी हिल्स, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, इन इलाकों के जो हिली एरियाज हैं वहां भी ये चाय की अच्छी फसल होती है. और ध्यान रखिएगा, आज टी दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है, यानी पेय पदार्थ. इसका इस्तेमाल पूरे दुनिया में किया जाता है. और आज ये प्रोटोकॉल है, एक कर्टसी दिखाई जाती है जब भी कोई गेस्ट आपके यहाँ जाते हैं, आप कहीं जाते हैं, तो पीपल ऑफर यू अ कप ऑफ टी. चलिए, अब दूसरा, इसी प्रकार से दूसरी जो बेवरेज क्रॉप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी भी कहानी वही है, कॉफी. ये कॉफी भी ब्रिटिशर्स ने ही इंडिया में इंट्रोड्यूस की. एट प्रेजेंट इंडिया इज वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड, और इंडियन कॉफी इज हैविंग ग्रेट डिमांड इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट्स टेस्ट. नेक्स्ट आते हैं, 4% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉफी प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन इंडिया. अब ये भी 3 प्रकार की होती है, अरेबिका, रोबस्टा एंड लिबेरिया.
ये 3 प्रकार की होती है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है और यही इंडिया में पाई जाती है। ड्रेन सॉइल चाहिए, यहाँ भी वाटर की स्टैग्नेंसी नहीं होनी चाहिए, पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। एल्टीट्यूड, ये भी स्लोप से एरिया में होंगे 1100 टू 2400 मीटर्स वाले स्लोपी एरिया में। अब देखिए स्लोपी एरिया में जैसे मैंने लिखा नीलगिरी हिल्स का इलाका है, पायलनी हिल्स का इलाका है, एनामलाई हिल्स है, ये सारे इलाके में, उसके अलावा स्टेट्स को लेते हैं कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन इलाकों में कॉफी की बहुत अच्छी फसल होती है और कॉफी की बीन्स होते हैं और उससे कॉफी निकाली जाती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने टीवी पे प्रचार भी देखा होगा, खासतौर से जाड़े में कॉफी हम लोग जाड़े में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जाड़े में टी की खपत थोड़ी कम जाती है, लेकिन कॉफी हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। कॉफी का इस्तेमाल टॉफियों में भी होता है और पीपल लाइक कॉफी। तो इंडिया एक मेजर प्रोड्यूसर है। तो नेक्स्ट जो है ये 2 बेवरेज क्रॉप्स के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा क्रॉप, तो पढ़ेंगे अभी रबर। ये रबर क्या है, तो ये नॉन फूड क्रॉप है, लेकिन ये भी एक प्लांटेशन क्रॉप है। तो नेक्स्ट रबर। चलिए रबर जानते हैं, रबर इज यूज्ड इन आवर एवरीडे लाइफ एट वेरियस प्लेसेस फॉर द पर्पस ऑफ रबर बैंड आल्सो और मेकिंग टायर्स, ट्यूब्स, रबर इज देयर। तो rubber is very much important nowadays in our day-to-day life. Have you ever thought from where we are getting this rubber? Actually, rubber also obtained from plant. आश्चर्य ना, कैसे रबर? हाँ, जिस रूप में हम रबर ले रहे हैं, जो इस्तेमाल कर रहे हैं, that is after processing in industry, तब हमें वो रबर मिलती है उस प्रकार की जो हम यूज करते हैं। लेकिन हम बात करते हैं रबर प्लांटेशन की, तो ये एक प्लांटेशन क्रॉप है और इसे भी चाय और कॉफी की तरह अंग्रेजी शासन में ही हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस किया। इसकी भी क्रेडिट अंग्रेजों को जाती है। इंडिया रैंक 5th इन द वर्ल्ड एज फार एज रबर प्रोडक्शन इज कंसर्न्ड। अब क्लाइमेटिक कंडीशंस को अगर देखें तो ये इक्वेटोरियल क्रॉप है। इक्वेटोरियल यानी इक्वेटोरियल क्रॉप का मतलब है कि इसे एक डिसेंट टेम्परेचर चाहिए, ठंडे के मौसम में ज्यादा नहीं होगी और रेनफॉल भी अधिक चाहिए इसे। तो ट्रॉपिकल रीजन है, ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस इज रिक्वायर्ड। और हॉट और ह्यूमिड है यानी टेम्परेचर अच्छी खासी चाहिए और साथ में रेनफॉल भी अच्छी खासी 175 to 300 सेंटीमीटर। तो यानी ये वहां पाया जाएगा जहां पे बहुत अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट वन सॉइल, एलुवियल सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, वेल ड्रेन्ड डेट्राइट सॉइल, सारे इलाकों में ये पाया जाता है। नेक्स्ट एरिया, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज आल्सो इंपॉर्टेंट। सी त्रिपुरा, आसाम, दीज आर द मेजर रबर प्रोड्यूसिंग एरियाज। रबर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। ये नॉन फूड क्रॉप है, बट इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी मच हेल्पफुल इन अर्निंग फॉरेन करेंसी। हम जब रबर को एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बाद किसानों को एक्सपोर्ट करते हैं, तो भारत को बड़ी पैमाने पे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट इज कॉटन। कॉटन फाइबर जिसपे रेशे होती है और कॉटन के बने हुए कपड़े हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तो सिंस एंशिएंट टाइम इंडिया वाज वेरी मच फेमस फॉर इट्स कॉटन एंड कॉटन टेक्सटाइल। In the British period, the cotton textile industry has been just collapsed, but again we have revived, and now India is the largest producer of cotton. हम कॉटन प्रोडक्शन में भी हाई नंबर 1 है और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इंडिया का नाम जाना पहचाना है। We are having major position in the world market. Next, what kind of crop is cotton? It is a kharif crop. What kind of crop? Kharif crop. जब खरीफ क्रॉप कहेंगे तो निश्चित रूप से ये खरीफ क्रॉप के लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो सारी इसमें आएगी। जैसे हाई टेम्परेचर आएगी, रेनफॉल आएगी, उसी प्रकार से देखिए सॉइल, ब्लैक सॉइल को सूट करती है, ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ये डेक्कन जो इलाका है, डेक्कन ट्राइब, that was the area, major area from where black soil is found, and that is the area where cotton is grown well. Temperature, high temperature is required. Rainfall, light rainfall. Sunny and dry weather,
यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लगातार बारिश चाहिए, सनी एंड ड्राई वेदर, यानी लगातार बारिश नहीं चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री मौसम चाहिए। फ्रॉस्ट फ्री का मतलब होता है ठंड का मौसम नहीं हो, फ्रॉस्ट नहीं होनी चाहिए, यानी धुंध नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार की चीजें यहाँ पे चाहिए। अगर टेम्परेचर डिक्लाइन कर जाएगी तो कपास की फसल बर्बाद हो जाएगी। और आपने सुना होगा कपास की फसल को लेकर के बहुत सारे कंट्राडिक्शंस चलते हैं, किसान बड़ी मात्रा में आत्महत्या कर रहे, चूंकि ये एक कमर्शियल क्रॉप है, प्लांटेशन क्रॉप के रूप में इस्तेमाल होती है, लेबर और कैपिटल इंटेंसिव है, तो किसान काफी बड़ी मात्रा में कर्ज लेकर के खेती करते हैं, और जब फसल बर्बाद हो जाती है तो वो कर्ज नहीं चुका पाते हैं। उसी के तनाव में बहुत सारे किसानों के आत्महत्या करने की भी खबरें आती रहती है, खासतौर से खासतौर से महाराष्ट्र के इलाके में ये घटनाएं बहुत ज्यादा होती है। ये एक बहुत बड़ा इशू है कि क्यों भारत के किसान इस प्रकार से बड़ी मात्रा में आत्महत्या करते हैं। एक अनुमान के अनुसार, जो एक अनुमान है, वो प्रतिवर्ष लगभग 5000 किसान आत्महत्या करते हैं, और आत्महत्या की बड़ी वजह उनके कर्ज होते हैं। Once they feel that they were unable to repay their loan, they decide to commit suicide, because number of agencies were running after to just take their loan back, but the farmers were unable to pay their loan because the earning capacity of the farmer had reduced due to the failure of the crop. क्योंकि बड़े मात्रा में पूंजी लगती है, बर्बाद होने के बाद किसान कहीं का नहीं होता है, जो छोटे किसान, सीमांत किसान, वो बर्बाद हो जाते हैं, और अपमानित होने से बेहतर वो समझते हैं आत्महत्या करना। तो ये एक ज्वलंत इशू है। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका जूट, मेजर क्रॉप में जूट को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, लास्ट जो इंपॉर्टेंट क्रॉप पढ़नी है फाइबर क्रॉप में जूट। जूट इट इज अ नेटिव प्लांट, मतलब ओरिजिनल ये क्रॉप इंडिया की, फ्रॉम इंडिया इट हैज बीन स्प्रेडेड वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सो ये नेटिव क्रॉप है इंडिया की। इसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। It is very much important that which crop is known as golden fiber? It is the jute. Why? Because of its importance. Since ancient period, cotton and jute were playing a major role in earning foreign currency. Goods made up of cotton and jute were great in demand in the world. So India was one of the largest producers of raw cotton as well as the cotton goods. So over here, hot and humid climatic condition is required. Hot and humid, high temperature is required. Temperature 27 degree and above average. High temperature is also. Next, rainfall more than 150 centimeter. Higher amount of rainfall is required. Next, alluvial soil of deltatic region. याद रखिएगा, जूट की खेती के लिए जरूरी है पानी की बहुत अच्छी मात्रा। एक्चुअली होता है क्या कि वाटर में जूट के डंठल को रखे जाते हैं, वो धीरे धीरे वो पानी के साथ, वो आप कह सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा पानी के साथ वो मिल करके वो स्वेल कर जाती है, फूल जाती है, और उसके बाद वो सड़ने लगती है, तो उस पे से उसकी परत निकाली जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जूट के लिए कि वो रीजन जहाँ पे पानी की पर्याप्त मात्रा मौजूद होगी वहां होगा। इसीलिए वेस्ट बंगाल इज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ जूट, बिकॉज वो जो हुगली बेसिन है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वाटर की स्टैग्नेंसी होती है, वाटर कैपेबिलिटी होती है, जहां जूट की बहुत अच्छी फसल होती है। अब मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज क्या होंगे? अगर आपने इनको समझ लिया तो उसी प्रकार से आप एरिया बता सकते हैं। क्या? वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, मेघालय। These are the major jute producing areas. One more thing, used to make sacks. इसका इस्तेमाल कहाँ का होता है? बोरे बनाने में, जूट की बोरे। आज के समय में सिंथेटिक जो फाइबर्स आ गए हैं, प्लास्टिक आ गए हैं, रबर आ गई है, इसे बहुत स्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ता है। परंतु nowadays again for the sake of maintaining sustainable development, to save our environment, again we are moving towards that jute bags, gunny bags. Over here, sacks, joints, ropes, gunny bags, carpets, mats, etc. A number of variety of goods are used that is made up of jute.
and nowadays the demand of jute is increasing. Jute products is increasing because it is environmental friendly products. So बच्चों, अब हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा मेजर क्रॉप्स, हमने देखा जो फूड क्रॉप्स में हमने देखा राइस को, हमने देखा व्हीट के विषय में, हमने पढ़ा मेज के विषय में, पल्सेस के विषय में, और इसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ नॉन फूड क्रॉप्स को भी पढ़ा जिसमें हमने बेवरेज क्रॉप में टी, कॉफी के विषय में जाना, रबर के विषय में जाना, और साथ में हम लोगों ने जूट और कॉटन के विषय में जाना. Actually, there are a variety of crops grown in India, but these are the major crops that we should know. And if we understand about the nature of crops, we can easily identify which areas are rich in these kind of crops, because every crop requires different kind of climatic conditions, temperature, rainfall. So accordingly, these crops are just grown in different pockets of a country. So next class we will discuss about institutional and technical reforms. मतलब भारत में एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं, और उसके लिए दो एस्पेक्ट होगा, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. मतलब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर.